Okay. So exercise 8.4. Let's directly go to exercise 8.3 first. Like after 8.3, we'll just see what are the examples questions also given in exercise 8.4. Okay. So this is what we had completed in the last class. Next is the trigonometric identities. You know, these formulas, Manya, I had already explained you. I'll just mark these formulas and you can see it. Do you remember this formula? Yes. You know, here all these explanations right now, no need to go through this. Just remember the formula. Cos square a plus sine square a is 1. What is a? A is an angle, right? So it is like, what is sine square theta plus cos square theta? The answer will be 1. Got it? Yes, so this Yes. is your very first famous trigonometric identity. I hope you remember other trigonometric identities too. You remember the other trigonometric identities formula? See, first was sine square theta plus cos square theta equals 1. Do you remember the second one? It was sec square theta minus tan square theta is equal to 1. You remember the second trigonometric identity formula? Yes. Okay. So if you want to remember this, I'll give you a hint. Okay. This hint will not be applicable to everyone, but I can just tell you कैसे याद रखना है. So it's S, one second. Yeah, it's S and T. And you know that S, from S we have, you know, sec square theta. Of course, sine is also there, but sine formula is very different. So sec and tan. So for that, you can remember my name only. So in Swati, see, I'm just giving you a hint. S T. So remember, S sec square theta and then minus tan square theta is equal to 1. You know, these formulas are something which we normally don't forget, Manya. Okay, that is why I'm just explaining these small tricks to remember it. Okay. Will you remember Okay. this formula now? So Yes. what was the first trigonometric identity? Cos square theta plus sine square theta is equal to 1, or sine square theta plus cos square theta is equal to 1. What is the second formula? Just now I explained the Swati trick. Sine sine theta plus tan Sec theta. square Sec sec square theta plus sine minus square minus minus tan minus square tan theta theta. Tan square theta equals 1. equals 1. Okay, so you can see that that formula is only written here. If you then tan square a to the other side, it will become the same formula, right? So sec square a minus tan square a is equal to 1. Remember, sometimes you will see A, sometimes you will see B, sometimes you will see X, sometimes you will see Y, sometimes you will see T, theta, alpha, but the formula would be the same thing. Okay, got it? Manya, clear? Yes. Okay, so this is the second formula. Remember that this exercise is going to be based on these trigonometric identities only, and this is your third one. So the third one is cot square a plus 1 is equal to cosec square a. I'll ask you to remember this way. First was, you saw what was this. Second was also you saw. And third one is cosec square theta. Okay. Minus cosec square theta minus cot square theta will be equal to 1. Okay. So remember cosec minus cot. First time it was sec square theta minus tan square theta was 1. This was the second trigonometric identity. And the first one is, of course, very simple. Sine square theta plus cos square theta is equal to 1. You have to remember these three trigonometric identities, Manya, to do a lot of questions. Okay. Okay. Yes. Okay. So now let's go to the first question. So the first question is, express the ratios cos A, tan A, and sec A in terms of sine. Okay. So this is a very simple question. इसमें what do you have to do? पहला cos A को हमें sin A के फॉर्म में लिखना है. दूसरा tan A को भी हमें sin A के फॉर्म में लिखना है. और तीसरा sec A को भी हमें sin A के फॉर्म में लिखना है. ठीक है? तो दिस इज वेरी सिंपल. कैसे हम cos A को sin A के टर्म में लिख सकते हैं? इसका मतलब यही हुआ कि cos A should be equal to anything and that can contain any constant and sign.
दैट्स इट. कांस्टेंट मीनिंग इट कैन बी एनी नंबर. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे ये वेरी फेमस फॉर्मूला से. वी नो दैट cos square a plus sin square a is equal to 1. यहाँ पे थीटा क्यों नहीं ले रहा है? बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी थीटा की जगह पे इन्होंने a लिया हुआ है. दैट इज वाई हम a लिख रहे हैं. गॉट इट? Okay. Yes, so you will start from something that you already know, a trigonometric identity. So cos square a plus sin square a is 1. यहाँ से माने if you notice cos square a को हमने वही रखा है और ये sin square a को shift किया है. So will it not become 1 minus sin square a? Yes. Right? Okay. So now we have to write cos a, not cos square a. तो ये square को क्या हम दूसरे साइड शिफ्ट नहीं कर सकते एज अ स्क्वायर रूट? तो क्या हुआ है? cos a has become root over 1 minus sin square a. Okay, so what is the answer? Forget about this one. Okay, let's come after this. Let's come to this. Cos a will be root over 1 minus sin square a. And that's the answer. See, हमने cos a को sin a के टर्म में लिख दिया. That's it, done. ठीक है, इसमें बस हमें एक्सप्रेस करना था, कन्वर्ट करना था, और कुछ भी नहीं. ओके, नेक्स्ट सेम हमें tan a के साथ भी करना है. तो tan a को भी हमें किसमें किसमें कन्वर्ट करना है? सिर्फ sin a में. सिर्फ sin a में कन्वर्ट करने का मतलब ये हुआ कि tan a शुड बी इक्वल टू समथिंग जहां पे sin a आए या कोई नंबर्स आ जाए, बट cos, cot, tan, cosec ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए. दैट्स इट. ठीक है, तो अब हम tan a को करेंगे. तो tan a के लिए हमने पहला फॉर्मूला यूज किया है sin a by cos a. यू रिमेम्बर? माने tan थीटा का हमने सबसे फर्स्ट क्लास में ये फॉर्मूला किया था, sin थीटा बाई cos थीटा. Yes. याद है? ओके, सो दिस फॉर्मूला दे हैव डायरेक्टली यूज. सो tan a इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a. हमें रखना किस में है? sin a में ही रखना है. तो ये sin a को हम वैसे ही रहने देंगे बिकॉज इसको क्यों हटाना है? क्योंकि हमें sin a में ही कन्वर्ट करना है सबको. बट ये cos a को हमें कन्वर्ट करना है, राइट? तो आप यहां से आपको नहीं समझ में आएगा, मैं यहां से एक्सप्लेन करती हूँ. तो sin a विल बी sin a. ठीक है, नाउ व्हाट इज cos a? तो cos a की जगह पे कैन वी नॉट यूज दिस फॉर्मूला that we know that cos square a plus sin square a is 1. So what will be cos square a? Cos square a will be 1 minus sin square a, right, Manya? So if Yes. cos square a is 1 minus sin square a, then what is cos a? Will it not become root over 1 minus sin square a? Do you understand this? Yes. करेक्ट. तो यहाँ पे जो cos a का फॉर्मूला आया है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर a और यहीं पे छोड़ देना है, बस. दैट्स इट, खत्म. हमारा आंसर मिल गया हमें. tan a is sin a अपॉन रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर a. नाउ इफ यू विल आस्क क्यों यहीं पे कैसे समझ आया कि यहीं पे रुकना है, आगे नहीं सॉल्व करना है? बिकॉज क्वेश्चन वाज कि tan a को हमें sin a के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इस फॉर्म में जो हमने यहाँ पे लिखा है मान्या, इसमें साइन ए के अलावा और कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आया नहीं आया है. दैट्स इट, डन. हमने इस वाले पार्ट को इफ यू नोटिस हमने और सिंप्लीफाई किया. क्यों? क्योंकि साइन ए, ठीक है, साइन ए वो साइन ए क्योंकि हमें साइन ए चाहिए था, बट कॉस ए जो था उसको कन्वर्ट करना था और उसको कन्वर्ट करके हमने ये लाया इसके थ्रू. डू यू अंडरस्टैंड मान्या? Yes. लाइक अगर आप ये खुद से भी रिवाइज करोगे एग्जाम के पहले तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इस एनसीईआरटी बुक में इन्होंने ये किया है कि डायरेक्टली कॉस ए को ये लिख दिया है. मैंने आपको बताया कि वो आया कैसे, और उन्होंने वो डायरेक्टली इसलिए लिखा है क्योंकि वो इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल दिया था. ओके, बट आपको अगर ये क्वेश्चन है तो आप उसको शो कर देना. क्यों? क्यों cos a will be equal to 1 minus root over 1 minus sin square a using the first trigonometric identity. Right? Clear? Okay. अभी नेक्स्ट जो है वो है sec a. राइट, सो लेट्स सी sec a को हम sin a में कैसे कन्वर्ट करेंगे. ओह, अच्छा, इन्होंने sec a का सॉल्व ही नहीं किया. इट्स ओके, हम सॉल्व कर लेते हैं खुद से. तो sec a को हम क्या करें कि हम इसको sin a में सिर्फ कन्वर्ट कर ले. ओके मान्या, सो अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना बिकॉज उसका सोल्यूशन यहाँ पे तो नहीं दिखा है. आई एम नॉट श्योर आपके बुक में दिया हुआ है नहीं. तो लेट्स राइट इट, लाइक लेट्स सॉल्व दिस. सो sec a और cos a दोनों आपस में रेसिप्रोकल है. कैन वी राइट डाउन दिस? Yes. We know
A can be written as 1 upon cos A. और जैसे ही cos आया, डोंट यू थिंक कि हम फिर से वही फॉर्मूला यूज करके दैट cos square A plus sin square A is 1. तो यहाँ पे cos square A will be what? 1 minus sin square A. So what will be cos A? Cos A will be root over 1 minus sin square A. So do you see कि हम यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज कर डन. हम हमने को लिखा है वो ये फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं आ रहे हैं. गॉट इट? आपको ये क्वेश्चन Yes. समझ में आया प्रॉपर? ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस. ओके, सो यहाँ पे सारे सोल्यूशंस है तो मैं आपको सोल्यूशन यहाँ समझा देती हूँ सो दैट अगर आप ये क्वेश्चंस एक बार रिवाइज करो तो आपको समझ में आए कि ये सारे स्टेप्स हुए कैसे. ठीक है मान्या? Mm-hmm. ओके, आपको जिस मोमेंट पे ये लगे मान्या दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी स्मॉल थिंग आल्सो, फील फ्री टू स्टॉप मी. आई रिमाइंड यू. आप एकदम बिना टेंशन के डायरेक्ट बोलना कि ये वाला स्टेप मुझे नहीं समझ में आया. ओके? यस, आई वुड बी मोर देन Okay. हैप्पी टू हियर योर डाउट अगर कोई डाउट आता है तो. ठीक है? अदरवाइज यू नो फ्रॉम माय साइड मान्या आई ट्राई टू थिंक ऑल द पॉसिबल वेज कि कहाँ से डाउट आ सकता है, क्या डाउट स्टूडेंट के मन में आ सकता है. ओके, सो आई ट्राई टू थिंक इन ऑल द पॉसिबल वेज एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन एवरी वे. बट स्टिल अगर कोई भी ऐसा डाउट आए जो आपको लगे कि ये वाला नहीं समझ में आया और मैंने उसको ओवरलुक कर दिया या मैं आगे बढ़ गई तो यू स्टॉप मी. ठीक है? Let's start. Example number 13. It says prove that sec A into 1 minus sin A into sec A plus tan A is equal to 1. ये हमें prove करना है. So don't you think कि हमें ये prove करना है मतलब हमें LHS को RHS के equal करना है, right? यही करना है. Now LHS में क्या है हमारे पास? sec A हमने वही क्वेश्चन लिख दिया है, sec A into 1 minus sin A into sec A plus tan. ठीक है? अभी sec A के जगह पे इन्होंने वो फॉर्मूला लिखा है 1 अपॉन cos A. क्यों? क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता है. ओके, अभी दे आर इन एक्सरसाइज 8.4 तो ये 8.1 8.2 8.3 कहीं का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बिकॉज दे एक्सपेक्ट कि स्टूडेंट को पता है ये सारे फॉर्मूलाज. राइट? सो sec थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, इट्स 1 अपॉन cos थीटा. वो दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं. तो sec A की जगह पे इन्होंने लिखा है 1 अपॉन cos इनटू 1 माइनस साइन ए को एज इट इज रहने दिया है और ये sec A प्लस tan A को और ब्रेक किया है इनटू द फॉर्मूला. सो sec A को फिर से लिखा है 1 अपॉन cos A और tan A को लिखा है sin A अपॉन cos A. क्यों? बिकॉज यू ऑल्सो नो कि tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है? sin थीटा बाई cos थीटा. सो ऑफ कोर्स tan A क्या हो जाएगा? sin A बाई cos A. ये स्टेप क्लियर है मानो? ओके, नाउ इसके बाद उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स स्किप किए तो मे बी आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो तो मैं यहाँ से लिखती हूँ. ठीक है? सो 1 अपॉन cos A को मैं ऐसे ही रहने देती हूँ. ठीक है? एंड देन 1 अपॉन sin A ऑफ कोर्स इनटू 1 माइनस sin A एज इट इज. और अगर आप इस वाले पार्ट का एलसीएम लोगे मान्या तो क्या आएगा? टेल मी. क्योंकि आप देख सकते हो न्यू डिनोमिनेटर सेम है तो कैन यू टेल मी कि क्या आ सकता है एलसीएम लेने के बाद? Will it not be just cos A as it is? Cos A ये दोनों ऐड हो रहा है राइट? सो cos A ही रहेगा और ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो ऐड हो जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? Yes. यस, ठीक है. इसके बाद 1 अपॉन cos A को ऐसे रहने देते हैं और ये 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो गया तो इसको हम ऐसे साथ में लिख देते हैं 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस 1 प्लस साइन ए. राइट? और नीचे वाले cos A को भी ऐसे ही रहने देते हैं cos A. नाउ टेल मी मानिए ये cos A और ये cos A मल्टीप्लाई हो गए बिकॉज यहाँ मल्टीप्लीकेशन साइन है. विल इट नॉट बिकम cos स्क्वायर A? राइट? इट विल बिकम cos Yes. स्क्वायर A which you can see here written. राइट? और ये जो 1 माइनस साइन ए है और ये जो 1 प्लस साइन ए है वो यहाँ पे लिखा हुआ है. तो आई होप कि इसके बाद ये स्टेप कैसा है वो आपको क्लियर हुआ क्योंकि मैंने वही एक्सप्लेन किया. नाउ आई इरेज एवरीथिंग. समझ आया मान्या कैसे हम वो स्टेप से स्टेप पे आए? Yes.
सी फर्स्ट इन्होंने ये 1/cos A लिखा sec A को, फिर 1 - sin A को एज इट इज रखा और sec A plus tan A को सॉल्व किया। sec A को लिखा 1/cos A और let me use the that pen, वैनिशिंग पेन, हाँ। सो sec A को इन्होंने लिखा 1/cos A, 1 - sin A को 1 - sin A एज इट इज रखा और sec A को लिखा 1/cos A फॉर्मूला में और tan A को लिखा sin A/cos A। इसके बाद इन्होंने ये 1 का कोई नीड नहीं था तो 1 ऐसे ही रख दिया, 1 - sin A को यहाँ पे लिखा है, ओके। और इस वाले पार्ट को सिंपल इन्होंने सॉल्व कर दिया है। तो यू नो दैट कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा 1 + sin A और डिनोमिनेटर में एक ही cos A रहेगा, राइट। बट उन्होंने उस एक cos A को और ये cos A को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा है cos square A। समझ आया अभी? यस। Yes. तो ये cos square A हो गया और न्यूमरेटर में क्या है 1 - sin A into 1 + sin A। अभी यहाँ पे इन्होंने एक और फॉर्मूला यूज किया है विच आई एम श्योर आपको नहीं समझ में आया होगा कि ये फॉर्मूला कौन सा यूज किया। कैन यू से कि यहाँ से ये वाला स्टेप कैसे आया? एनी आइडिया? इन्होंने लिखा है 1 - sin A into 1 + sin A will be 1 - sin square A। डू यू हैव एनी आइडिया कैसे इन्होंने 1 - Because sin we square A will लिखा? subtract we will Okay. subtract both the sides. You will subtract. I'll Plus just tell you a formula, very famous formula that we already know, and that was, you remember A plus B into A minus B का क्या formula पढ़ा था हमने? Was it not A yes, square minus B square? yes, तो यहाँ पे can you not see कि same ही चीज है, A minus B into A plus B, where what is A? 1. What is B? Sin A. So formula के हिसाब से it should be A square minus B square. A square meaning 1 square. What is 1 square? 1 minus B square. That means sin A square, which is sin square A. Do you understand this now? yes, ये फॉर्मूला यूज किया, ओके। सो आप एक काम करो मान्या, आई जस्ट एडवाइस यू कि आप एनसीईआरटी बुक ओपन कर लो और वहां पे ये वाला एक्सरसाइज आप ओपन करो, एग्जाम्पल ओपन करो एंड राइट डाउन दीज थिंग्स ऑन द साइड सो दैट आप अगर आप जब बाद में रिवाइज करने जाओगे तो एटलीस्ट यू विल हैव एन आइडिया कि अच्छा यहाँ के बाद ये फॉर्मूला यूज हुआ है। तो जैसे मैं लिख रही हूँ कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज जो एनसीईआरटी ने स्किप किया है बिकॉज दे नो कि स्टूडेंट को ये समझ आ जाएगा, राइट। बिकॉज ऑफ कोर्स कुछ कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी क्योंकि उन्होंने बहुत सारे स्टेप स्किप किए होते हैं। तो आप भी लिख लिया करो, ओके। ठीक है, ओके। सो okay, दिस विल बिकम 1 - sin square A and then upon cos square A as it is now 1 - sin square A को इन्होंने cos square A लिखा है and this is very simple। कैसे लिखा है? you know that cos square A plus sin square A is equal to 1। तो यहां से cos square A क्या होगा? will it not become 1 - sin square A? तो व्हाट इज द 1 - sin square A? इट इज cos square A। तो इन्होंने वही किया है, 1 - sin square A की जगह पे इन्होंने लिखा है cos square A यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फॉर्मूला और ये जो cos square है उसको एज इट इज रखा है। सो नाउ व्हाट इज cos square A अपॉन cos square A? 1। और वही RHS था हमारा, प्रूव्ड। अंडरस्टूड द फर्स्ट क्वेश्चन? yes, ओके, सो ये हो गया क्लियर हमारा first example, sorry, example number 13. Now let's go to example number 14. So example number 14 में भी हमें prove करना है। prove क्या करना है? cot A minus cos A upon cot A plus cos A will be cosec A minus 1 upon cosec A plus 1. तो यहाँ पे of course we'll start with the LHS. Most of the questions मानिए LHS से start करके RHS में जाते हैं, okay? So LHS में है यहाँ पे cot A minus cos A upon cot A plus cos A, right? कॉट ए का इन्होंने फॉर्मूला यूज किया है, राइट। कॉस ए अपॉन साइन ए, जैसे हमारे पास टैन थीटा का फॉर्मूला था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वैसे हमारे पास कॉस थीटा का भी फॉर्मूला है और वो एग्जैक्टली इसका उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि सॉरी सॉरी नॉट कॉस, कॉट, क्योंकि कॉट और टैन आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर टैन है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सो कॉट थीटा विल ऑटोमेटिकली बिकम उसका उल्टा, विच इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो उन्होंने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया, तो दिस हैज बिकम कॉस ए अपॉन साइन ए। क्लियर? yes, यस, ओके। तो आप अभी एक पेंसिल लेके रखो और एनसीईआरटी बुक में ये वाला पेज नंबर भी दिख रहा है 192, ये भी खोल लो और आपको लगे कि अच्छा ये वाला नहीं समझ में आया, मतलब समझ में आया है बट ये स्टेप लिखा नहीं है, तो राइट इट डाउन, ओके, साइड में, ओके।
उसके बाद इन्होंने क्या किया, सिर्फ कॉट को कन्वर्ट किया है, देन दे हैव रिटन कॉस ए एज इट इज। सेम नीचे भी किया है, कॉट ए के जगह पे फिर से फॉर्मूला लिखा है एंड देन प्लस कॉस ए को रखा है एज इट इज। नाउ इसके बाद इन्होंने क्या किया, आई विल टेल यू। इन्होंने कॉस ए को कॉमन निकाला है। ओके, सो अगर इस टर्म में से कॉस ए को बाहर निकालेंगे, जो कि इन्होंने यहाँ पे निकाला है, तो ये 1/sin ए बचेगा। डू यू अंडरस्टैंड मान्य? सी, Yes. इस ऊपर वाले टर्म में से इन्होंने cos a को कॉमन निकाला है, तो अगर cos a को कॉमन निकालेंगे तो इस वाले टर्म में से cos a तो बाहर निकल गया, तो क्या बचा, 1/sin a माइनस एज इट इज जो माइनस साइन है, और ये cos a ऑलरेडी बाहर निकला हुआ है, तो यहाँ पे 1। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कॉमन Yes. निकालने वाला स्टेप समझ में आया? ओके, सेम थिंग दे हैव डन इन द बॉटम आल्सो। फिर से cos a बाहर निकाला है एंड देन 1/sin a लिखा है एंड देन प्लस 1 बिकॉज cos a बाहर है। नाउ ऑफ कोर्स ये cos a कैंसिल हो जाएगा बिकॉज सेम थिंग है ऊपर नीचे। तो अभी क्या बचा, 1/sin a माइनस 1 अपॉन 1/sin a प्लस 1, ये बचा। राइट, नाउ यू नो दैट साइन थीटा और cosec थीटा आपस में रेसिप्रोकल होता है, राइट? सो कैन वी नॉट राइट डाउन दैट cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा? ये तो फॉर्मूला था ना, हमने जब वो फॉर्मूलाज किए थे p/h, b/h, p/b, तो उसमें cos साइन का वैल्यूज निकालने के बाद हमने cosec को क्या किया था, ठीक साइन का उल्टा, बिकॉज साइन एंड cosec जो है वो आपस में रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे अगर 1/sin a है तो इसका फॉर्मूला है cosec a, तो 1/sin a को इन्होंने डायरेक्टली cosec a लिखा यूजिंग द फॉर्मूला, और 1/sin a को यहाँ पे भी cosec a लिखा, एंड यू कैन सी दैट दिस इज नथिंग बट योर RHS, हेंस प्रूव्ड। टेल मी मान्या, क्वेश्चन समझ आया? Yes. Yes, okay. All right, example questions, you know, like we feel like, oh, आंसर्स तो दिए हुए समझ आ ही जाएगा, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि वो नहीं समझ में आता है कि कैसे सॉल्व करना। Okay, and let's do question number 15. Let's see how many exam. Okay, this is the last example question. So let's solve. So in example number 15, it is written, prove that sin theta minus cos theta plus 1 upon sin theta plus cos theta minus 1 will be equal to this, and they're also giving you a hint. And the hint is कि आपको ये वाला आइडेंटिटी यूज करके ये प्रूव करना है, ठीक है? So it's very simple. Let's directly start from LHS. Don't look at this. I'll explain you what is happening here. So LHS में दिया हुआ है ये पूरा, so उन्होंने पहले तो वो पूरा क्वेश्चन ही लिख दिया, ओके? इसके बाद इन्होंने क्या किया, I'll tell you. इसके बाद इन्होंने न्यूमरेटर को, पूरे न्यूमरेटर को cos थीटा से डिवाइड किया है और पूरे डिनोमिनेटर को भी cos थीटा से डिवाइड किया, ठीक है मान्या? तो अगर हम पूरे न्यूमरेटर को अगर cos थीटा से डिवाइड करेंगे, इफ यू विल आस्क हियर कि कैसे पता चला cos थीटा से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे कोई रूल नहीं है कैसे पता करने का। इट्स जस्ट कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस वाले क्वेश्चन में आपको cos थीटा से डिवाइड करना ही होगा, ओके? तो जितना ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये क्वेश्चन याद रह जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में हमें cos थीटा से डिवाइड, ठीक है? तो अगर हमने यहाँ पे cos थीटा से डिवाइड किया न्यूमरेटर को, तो पहला हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा, दूसरा हो जाएगा cos थीटा बाई cos थीटा, और तीसरा हो जाएगा 1 बाई cos थीटा। सो उन्होंने वो स्टेप लिखा ही नहीं है यहाँ पे, ओके? आप ये स्टेप लिखना मान्या, इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। अगर हमने न्यूमरेटर को cos थीटा से डिवाइड किया तो इट विल बिकम sin थीटा। सी, अगर हमने cos थीटा से डिवाइड किया तो वो सारे टर्म्स के साथ डिवाइड होगा, ओके? माइनस cos थीटा बाई cos थीटा, ये सिर्फ हम न्यूमरेटर के साथ कर रहे हैं, अभी डिनोमिनेटर के साथ फिर से करेंगे, ओके? एंड देन 1 अपॉन, सॉरी नॉट sin थीटा बट cos थीटा, ठीक है? नाउ व्हाट इज sin थीटा बाई cos थीटा? tan थीटा, उन्होंने वो tan थीटा यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। माइनस व्हाट इज cos थीटा बाई cos थीटा? 1, उन्होंने वो 1 यहाँ लिखा हुआ है विद द साइन ऑफ कोर्स एज इट इज। एंड व्हाट इज 1 बाई cos थीटा? sec थीटा, तो उन्होंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, एंड दैट्स हाउ दे हैव गॉट tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा इन द न्यूमरेटर। यही सेम थिंग इन्होंने डिनोमिनेटर में भी किया है, तो वही आएगा sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा, बट यहाँ पे प्लस साइन है तो इट विल बी प्लस साइन cos theta by cos theta is 1 and then minus sec theta.
ये समझ में आया मैंने स्टेप? कुछ ऐसा मैं लिख रही हूँ जो कि लग रहा है ये थोड़ा अलग है, ये आप भूल सकते हो, जस्ट राइट इट डाउन एनसीईआरटी बुक में पेंसिल से अपने अपने वर्ड में। ओके, अभी इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, ये tan थीटा और sec थीटा को एक साथ लिखा है पहले। ओके, इन्होंने एक साथ लिख दिया, और -1, ये जो -1 है उसको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या किया है, डिनोमिनेटर में दे हैव डन द सेम थिंग। यहाँ पे इन्होंने tan थीटा और -sec थीटा को एक साथ लिखा है, और +1 को यहाँ लिखा है। गॉट इट माने? क्लियर? Yes. ये समझ आया आपको? ओके, तो यहां से ये स्टेप किया है, उसके बाद इन्होंने क्या किया है, ये tan थीटा प्लस sec थीटा दे हैव रिटन एज इट इज। ठीक है, tan थीटा प्लस sec थीटा एज इट इज -1। ओके, यहाँ पे इन्होंने जो किया है जिस प्रॉपर्टी, सो इन्होंने यहाँ पे ये जो पूरा टर्म है उसको वापस से सेम लिखा है, विथ वन एक्स्ट्रा थिंग, कि एक टर्म लिया है इन्होंने tan थीटा माइनस sec थीटा, उससे इन्होंने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है, और यू कैन से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। मान्या, अभी आप अगर पूछोगे क्यों, तो इस क्यों का कोई रीजन नहीं है, बस इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ये वाला टर्म लाने के लिए ये लोग इतना कुछ कर रहे हैं। आपको याद कैसे रखना है, आपको ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है बार बार लिख के, तभी आपको ये याद रहेगा। मैं यहाँ पे आपको हेल्प इतना कर रही हूँ मान्या, कि ये सब कैसे कैसे इन्होंने स्टेप लिखा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपको समझ आए कि ये कैसे लिखा है, ये कैसे लिखा है, नेक्स्ट क्या लिखा है। यू आर अंडरस्टैंडिंग मान्या? और जिस भी क्वेश्चन में ये होगा कि एक रीजन है, किसी रीजन से उन्होंने वो किया है, दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू। बट यहाँ पे देर इज नो रीजन कि क्यों डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, बस किया है जस्ट टू बैलेंस इट आउट, क्योंकि उनको ये टर्म लाना है, तो वो कुछ भी मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, ऐड कर रहे हैं, दैट इज इट। मैं यहाँ पे बस इतना हेल्प कर रही हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये सब कैसे कैसे कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके मान्या, टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर? Yes. ठीक है, ओके, तो हम अभी इस स्टेप में थे, तो हमारे पास इस स्टेप के बाद हम इस वाले स्टेप में कैसे आए। तो पहले तो उन्होंने ये पूरा जो टर्म है उसको सेम टू सेम लिखा है, और उसके बाद उन्होंने एक टर्म लिया है tan थीटा माइनस sec थीटा। इफ यू नोटिस, ये वाला टर्म लिया है, उस वाले टर्म को मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग मान्या, कि अगर हम किसी भी चीज में सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उस नंबर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वही इन्होंने यहाँ भी किया है, उन्होंने एक एक्सप्रेशन लिया है, उससे मल्टीप्लाई किया और इससे डिवाइड किया। ओके, अभी क्यों किया है दैट यू विल अंडरस्टैंड हियर नेक्स्ट स्टेप में। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया इन्होंने, इन्होंने पहले सी, आई राइट डाउन हियर, अगर हमारे पास ऐसा कुछ हो a माइनस बी इंटू सी, तो इसका आंसर क्या होगा, विल यू नॉट मल्टीप्लाई a विथ c? तो पहले a को आप c से मल्टीप्लाई करोगे, एंड देन माइनस आप b को c से मल्टीप्लाई करोगे, राइट? यहाँ पे इन्होंने वही चीज किया है, पहले ये पूरे टर्म को tan थीटा प्लस sec थीटा को इन्होंने इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई किया है, which is nothing but tan theta plus sec theta into tan theta minus sec theta। ठीक है, ये करने के बाद इन्होंने क्या किया है, माइनस साइन, जो यहाँ पे ये माइनस साइन है, उन्होंने एज इट इज रखा है, और अब इस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो 1 इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा, तो 1 के साथ तो कोई भी चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही टर्म आ जाएगा, तो इट इज tan थीटा माइनस sec थीटा। ये समझ में आया स्टेप? सेम Yes. चीज इन्होंने नीचे नहीं किया है। ओके, नीचे वाले को एज इट इज रखा है जैसे है। ओके, अभी इन्होंने वैसे ही रखा है, तो यू कैन नोटिस कि नीचे तो वही है, ऊपर यू कैन सी समथिंग डिफरेंट। वो क्या है, तो उन्होंने फॉर्मूला यूज किया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आप नोटिस करो तो ये जो फॉर्म है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, विच इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज a? tan। व्हाट इज b? sec। सो विल इट नॉट बिकम tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा? तो इस वाले स्टेप के बाद उन्होंने बस वही फॉर्मूला यूज करके लिखा है tan स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर थीटा, और माइनस ये tan थीटा माइनस सेक थीटा को लिखा है एज इट इज। ठीक है, अब भी नेक्स्ट डिनोमिनेटर में जो टर्म यहाँ पे है उन्होंने सेम टू सेम लिखा है।
ठीक है, अभी इन्होंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है इन द नेक्स्ट टर्म, तो लेट मी इरेज एवरीथिंग। अगर आपको कुछ लिखना है मानने तो यू कैन राइट इट। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे यूज किया है, जो कि इन्होंने बहुत सारी चीजें स्किप कर दी है। क्यों? क्योंकि बस इन्होंने एनसीईआरटी हमेशा सोचता है कि स्टूडेंट को सब कुछ आ रहा है। When I was in class 10th, I also used to think like कि एनसीईआरटी बुक को ऐसा क्यों लगता है कि हमें सब आ रहा है, क्यों नहीं ये लोग सब कुछ एक्सप्लेन करके लिखता है। अभी देन आई रियलाइज कि हाँ, एनसीईआरटी थिंक्स कि स्टूडेंट को सब कुछ आ रहा है, तो अभी बहुत सारे स्टेप्स स्किप कर देते हैं। ओके, सो माने नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इस स्टेप के बाद ये वाले स्टेप में कैसे गए। ठीक है, सो डू यू रिमेम्बर द सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फॉर्मूला फ्रॉम माई नेम? मेरा जो वो ट्रिक था याद करने का, क्या था फॉर्मूला? सेक sec theta minus sec square tan theta theta. minus tan square theta will be equal to 1, राइट? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला 1 है, राइट? तो अगर मैं इन सबको दूसरे साइड शिफ्ट करूं, सो डोंट यू थिंक माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है वो प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और sec स्क्वायर थीटा जो है इसके आगे प्लस साइन है, तो ये माइनस sec स्क्वायर थीटा होगा। यस और नो? और ये 1 को अगर हम राइट साइड से लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे, दिस विल बिकम -1। डू यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? Yes. नाउ योर क्वेश्चन इज कि क्यों किया, राइट? क्योंकि यहाँ पे कैन यू नोटिस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा नहीं है, tan स्क्वायर थीटा माइनस x स्क्वायर थीटा है। तो मैं तो डायरेक्टली बोलती कि हाँ इसका वैल्यू 1 होता है, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये -1 होगा क्यों, आई मेड यू अंडरस्टूड कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ये वाला फॉर्मूला कैसे आया। गॉट इट? ठीक है, तो अगर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस x स्क्वायर थीटा -1 होगा, राइट? मानो क्लियर? Yes. ओके, तो इसकी वैल्यू जो है, 1 सेकेंड, लेट मी गो डाउन। या सो इसकी जो वैल्यू है tan स्क्वायर थीटा माइनस x स्क्वायर थीटा, वो -1 आया, आई जस्ट एक्सप्लेन, तो उन्होंने वो -1 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, एंड देन माइनस ये जो है माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा इन्होंने लिखा है बाय रिमूविंग द ब्रैकेट। तो अगर माइनस साइन है ब्रैकेट के बाहर मान्या, और अगर ब्रैकेट हम रिमूव करते हैं तो अंदर वाले साइंस चेंज हो जाते हैं। चेंज मीनिंग माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। तो अगर यहाँ पे माइनस साइन सी -1 एंड देन माइनस साइन, और जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो दिस विल बिकम tan थीटा, माइनस विल बिकम प्लस एंड देन sec थीटा। गॉट इट? और नीचे वाले को Yes. अभी भी उन्होंने वैसे ही लिखा है, सेम टू सेम। ओके, क्लियर? ये समझ आया ये कैसे किया उन्होंने, Yes. राइट? ओके, अभी इफ यू नोटिस, अगर हम ऊपर वाले टर्म में से माइनस साइन को कॉमन निकालें, ठीक है, मतलब न्यूमेरेट, लेट मी इरेज एवरीथिंग फर्स्ट, 1 सेकेंड। या ठीक, यहाँ पे ये स्टेप बिल्कुल समझ में नहीं आया कि उन्होंने इस स्टेप से ये स्टेप पे कैसे आया माना, तो आप लिख लो ये वाला स्टेप मैं समझा रही हूँ। न्यूमरेटर में अगर हम माइनस साइन को कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या होगा, 1 हो जाएगा, माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा, प्लस tan थीटा हो जाएगा, और प्लस sec थीटा क्या हो जाएगा, माइनस sec थीटा हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? और जो नीचे का टर्म Yes. है वो एज इट इज है। नाउ इफ यू नोटिस कि यहाँ पे जो टर्म है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, वही यहाँ पे भी टर्म है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। तो ये टर्म, राइट, और ये जो डिनोमिनेटर में ये टर्म है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल होगा तो व्हाट इज लेफ्ट, न्यूमरेटर में जस्ट माइनस साइन रहा, सो विच दे हैव रिटन एज -1, और नीचे में दे हैव रिटन दिस tan थीटा माइनस sec थीटा एज इट इज। और उसके बाद इन्होंने क्या किया है, माइनस साइन को हटा दिया है, और फिर से tan थीटा माइनस sec थीटा को इन्होंने उल्टा कर दिया है, sec थीटा माइनस tan थीटा, एंड दैट इज द RHS hence proved। सो ये क्वेश्चन जो है मान्या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एट द सेम टाइम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, बट आपको समझ आया सारा स्टेप्स मान्या? Yes. अगर आपको नहीं समझ में आया तो इफ यू वांट मैं इसके बाद से वापस से सब कुछ लिख सकती हूँ, एंड यू कैन राइट इट प्रॉपरली कि किया क्या इन्होंने। सो डू यू वांट मी टू राइट डाउन एवरी स्टेप?
No. No, you have understood it, right? Yes. Just for my satisfaction, I feel like अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो मैं एक बार लिख देती हूँ कि इस स्टेप के बाद एक स्टेप ये है कि उन्होंने माइनस साइन कॉमन निकाला है और 1 को 1 रखा है, क्योंकि ऑफ कोर्स माइनस साइन बाहर हो गया, ये माइनस जो है वो प्लस हो गया tan थीटा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, सो माइनस sec थीटा। और डिनोमिनेटर में इन्होंने जो टर्म्स था वो वैसे ही रखा है, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, +1 पहले लिखती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कैंसिल क्यों हुआ। उसके बाद ये tan थीटा लिख रही हूँ, प्लस tan थीटा, एंड देन माइनस sec थीटा मैं एंड में लिख रही हूँ। नाउ यू कैन सी वो टर्म्स ऊपर वाले और ये डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, और ये जो टर्म है वो एज इट इज tan थीटा माइनस sec थीटा, राइट। अभी यहाँ से यू कैन सी कि ये और ये टर्म कैंसिल होगा, और ये टर्म कैंसिल हुआ तो न्यूमरेटर में क्या है, माइनस साइन, बट सिर्फ माइनस साइन तो नहीं लिखेंगे, तो माइनस के साथ हम 1 लिख सकते हैं, बिकॉज माइनस और 1 इट्स द सेम थिंग, सो दे हैव रिटन -1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा। अभी इन्होंने इसको इसमें चेंज इसलिए किया है बिकॉज इस क्वेश्चन का RHS एग्जैक्टली ये था, राइट। तो इनको तो ये चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया, -1 को जस्ट 1 कर दिया है, और tan थीटा माइनस sec थीटा को लिख दिया है sec थीटा माइनस tan, ठीक है, अंडरस्टूड। तो वो माइनस साइन के साथ कॉम्पनसेट हो गया। आई होप ये एग्जाम्पल्स वाले सारे क्वेश्चंस बहुत ही क्लियर है, मान्या। डू यू हैव एनी Yes. डाउट और इज इट वेरी क्लियर? Yes. ठीक है, अभी लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 8.4. So in exercise 8.4, how many questions do we have? Oh, a lot of questions. It's okay. I'll try to cover few questions today. So express the trigonometric ratio sin A sec A and tan A in terms of cot A. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। sin A को हमें कन्वर्ट करना है, फिर sec A को भी कन्वर्ट करना है, एंड देन tan A को भी कन्वर्ट करना है। ओके, इन सबको कन्वर्ट किस में करना है, कॉट ए में। मतलब इसके आंसर में भी सिर्फ कॉट आना चाहिए, इसमें भी सिर्फ कॉट आना चाहिए, और इसमें भी सिर्फ कॉट आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन व्हिच इज साइन, ठीक है। नाउ टेल मी मान्या, साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, हमें कॉट में लिखना है, व्हाट डू यू थिंक? कैन आई राइट डाउन साइन ए एज 1 अपॉन कॉसेक ए? Yes. लिख सकते हैं, ओके। अभी आपको थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद है क्या था? अगर मैं आपसे थर्ड पूछूं तो आपसे मैं फर्स्ट और सेकंड भी पूछूंगी। फर्स्ट बताइए क्या था मान्या, व्हाट वाज द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? Sine minus cos. साइन स्क्वायर थीटा Yes. प्लस Sine square theta plus cos प्लस square theta equal 1. इक्वल्स 1। वेरी गुड, वो पहला था। दूसरा मेरे नाम पे था, लाइक ट्रिक। सो क्या था, टेल मी, आप ऐसे याद रख पाओगे? Sec theta. Sec सेक square theta स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर याद minus रखना, सब में स्क्वायर है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan square theta. tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। याद रखना है कि पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में प्लस साइन है, सेकंड और थर्ड दोनों में माइनस है। ओके, सेकंड वाला मेरे नाम से ट्रिक याद रखना मान्या, एंड थर्ड वाला आप बताओ क्या था थर्ड? साइन कवर हो गया, कॉस कवर हो गया, सेक कवर हो गया, कॉट कवर हो गया, सॉरी सेक और टैन कवर हो गया। व्हाट इज लेफ्ट? दोनों 1 equal. कॉसेक, दोनों सेम ही लेटर से स्टार्ट होते हैं, कॉसेक और कॉट। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1, राइट। Yes. ये था थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। मान्या, नेक्स्ट क्लास में अगर मैं आपसे ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पूछूं, आप एकदम 3 सेकेंड्स में आंसर दे देना मुझे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे तो हमारे पास कॉसेक ए है और हमें लाना है कॉट ए में, तो कैन यू नॉट सी कि यहाँ से कॉट ए वाला टर्म आ जाएगा? सो टेल मी, cosec square theta minus cot square theta is 1. So what will be cosec square theta? Will it not be 1 plus cot square theta? What do you think? Yeah. 1 plus cot square theta. So what will be cosec theta? स्क्वायर को क्या करेंगे, Root में convert. रूट में कन्वर्ट करेंगे, एंड वी हैव गॉट इट। हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आ गया उस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, तो हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन
cosec A. If cosec theta is this, then cosec A will be root over 1 plus cot square theta नहीं लिख के A लिखेंगे because वहां पे A है. And that's the answer. See, हमने sin A को cot A में convert किया. Yes, cot A में सिर्फ है, कोई दूसरा trigonometric identity नहीं है. So that's it. That is the answer. You can stop here. Right? Yes. है मान्य. ओके, अभी नेक्स्ट है sec A. ओके, अभी मैं sec, अब if you want to take a picture मान्य, आप इसका पिक्चर ले लो या भी कुछ भी लिखना है तो लिख लो and then I'll erase it क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं होगा फिर. So if you want to just click a picture, आप वो screenshot रख लो and then I'll Done. go to done. Okay, so next let's go to the second one and in the second one we have to convert sin A को convert कर लिया. अभी हमें sec A को convert करना है किसमें? cot A. Now अभी वैसे करेंगे तो कैन यू टेल मी कि sec A का रेसिप्रोकल क्या था? ओके आप ओके रेसिप्रोकल भी कर सकते. सी रिमेंबर वन थिंग, ट्रिग्नोमेट्री में यू नो देयर आर सो मेनी वेज टू सॉल्व अ क्वेश्चन. ओके, तो यहाँ पे sec A को जैसे मैं बोल रही थी वैसे भी कर सकते हैं, बट देन आई रियलाइज कि एक और फॉर्मूला है जो कि उससे ज्यादा सिंपल होगा एंड दैट इज द सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऑन माय नेम. टेल मी व्हाट वाज दैट? Sec square theta minus थीटा tan माइनस square theta tan equal स्क्वायर. what? अभी आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दूसरा वाला तो नहीं भूलने वाले माने, आई एम श्योर. Okay, so sec square theta minus tan square theta is equal to 1. So what will be sec square theta? Yes. What will be sec square theta? Will it not be 1 as it is and minus tan square theta को shift किया तो plus tan square theta? Right? Yes. Linear equation. Okay. Now, sec square theta is 1 plus tan square theta, but हमारे पास तो sec A है. तो यहाँ पे can you not tell me what will be sec theta? Will sec theta not become root over 1 plus tan square theta? Yes or no? Yes. Right? Okay, so this will become root over 1 plus tan square A. Do you understand this, Anya? Yes. Okay, हमें कन्वर्ट करना है सबको cot A में. अभी जैसे ही tan दिखे मान्य, it should be very simple कि tan को हम cot में कैसे कन्वर्ट करें. वो उसका रेसिप्रोकल है. तो can we not write down if tan theta is 1 upon cot theta? So what is tan square A? Will it not be 1 upon cot square A? If you want, you can leave it here only. That's the answer. क्यों? क्योंकि हमने कन्वर्ट कर दिया इसको cot A के टर्म में. Because cot A के अलावा अभी और कोई भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है इसमें. And that is why this will be the answer. Got it? मान्या clear? So ये भी हो गया. और जो थर्ड है which is tan A, तो tan A को cot A में कन्वर्ट करना is like a one line answer. 1 upon cot A. Done. Answer done. Got it? पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आया माने? Yes. Okay. Next question, question number 2. Write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी trigonometric ratios है सबको कन्वर्ट करना है sec A में, right? मतलब किसको कन्वर्ट करना है? sin A को कन्वर्ट करना है, cos A को कन्वर्ट करना है, tan A को कन्वर्ट करना है, देन cosec A को कन्वर्ट करना है, देन sec A को तो ऑफ कोर्स कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो उसी में आंसर को लिखना ही है. तो sec A को sec A में तो you cannot convert because that will be same as sec A. And the last one will be cot. तो इन पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यू कैन से, इन सबको हमें कन्वर्ट करना है sec A में. कैसे करेंगे? सब फॉर्मूलाज यूज करके. तो अभी यहाँ पे इन सबको कन्वर्ट करने के लिए मान्या यू शुड बी वेरी गुड विद द फॉर्मूलाज. सारे फॉर्मूलाज ध्यान होने चाहिए, सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, देन यू विल बी एबल टू डू इट. अभी ये लिखा, अब क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से ध्यान में होने चाहिए. तो आई विल डू वन थिंग मान्या कि आप क्वेश्चन नंबर 2 अभी लिख लो
क्या आप क्वेश्चन नंबर 2 को खुद से ट्राई करोगे? और अगर नहीं आएगा मान्या, तो आप इसका सोल्यूशन चेक करना। ओके, एनसीईआरटी सोल्यूशन एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व किया हुआ है। आप उस 8.4 में क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन को अच्छे से देखना मान्या, और देखने के बाद इफ यू फील कि अच्छा ये स्टेप है, सब कुछ समझ आ रहा है, देन वेल एंड गुड। और अगर नहीं समझ में आता है, यू कैन आस्क मी टुमारो। ठीक है, Okay. मैं क्यों नहीं क्वेश्चन नंबर 2 कर रही हूँ मान्या, क्योंकि जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, एग्जाम्पल में किया, सब सेम है, राइट? अगर मैं कर दूंगी, आई नो कैसे करना है, तो मैं तो कर ही दूंगी, बट आपको एक बार मैं चाहती हूँ आप खुद से प्रैक्टिस करो। Yes. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको दे रही हूँ करने के लिए, आप ट्राई करना खुद से, और नहीं आया तो आई एम ऑल्सो टेलिंग यू कि आप आंसर देख के ट्राई करना, अंडरस्टैंड करने का कि वो कैसे सॉल्व हो रहे हैं, सारे साइन को कैसे कन्वर्ट किया है सेके में, कॉस को कैसे कन्वर्ट किया है टैन को, देन कॉस को कॉट। ठीक है, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एमसीक्यूज है, बहुत ही सिंपल है सारे क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, हमें ये सॉल्व करना है, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर। बहुत सिंपल है, कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो साइन स्क्वायर 63 को आई एम राइटिंग एज इट इज, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 27। कैन यू टेल मी मान्या, जो हमें 8.3 में कर रहे थे, सारे एंगल्स को हम 90 माइनस कर रहे थे, सो कैन यू टेल मी 27 को 90 माइनस व्हाट कैन आई राइट? नो, आंसर आपके पास स्क्रीन पे भी है, इफ यू नोटिस केयरफुली। 20, 63. यस, 63, ठीक है, अपॉन नीचे क्या करते हैं, सी रिमेम्बर, या तो आप वो 63 के साथ कर सकते थे 90 माइनस 27, या तो आप 27 के साथ आपने किया, किसी एक के साथ करना है, एंड देन एक को एज इट इज रखना है। सेम थिंग विल बी डूइंग इन द डिनोमिनेटर आल्सो। cos स्क्वायर, लेट्स कीप 17 एज इट इज, और ये जो cos स्क्वायर 73 है, उस 73 को व्हाट कैन आई राइट डाउन, 90 माइनस व्हाट? सी अगेन आंसर जो है वो क्वेश्चन में ही है, 17, राइट? सो मान्य अभी क्वेश्चन इज क्यों 90 माइनस कर रहे हैं, बिकॉज 90 माइनस का फॉर्मूला पता है, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग इट। ओके, नाउ दिस इज साइन स्क्वायर 63 प्लस, टेल मी व्हाट वाज साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला। सी अभी हम एक्सरसाइज 8.3 वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। व्हाट वाज साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला? cos थीटा, ये था फॉर्मूला, राइट? Yes. Correct. So sine 90 minus theta is cos theta. So what is sine square 90 minus theta? Will it not become cos square theta? Yes. So it will become cos square, and theta is 63. So 63 upon cos square 17 as it is. Tell me what is cos 90 minus theta? What was cos 90 minus theta? Yes. What was cos 90 minus theta? Was it not sine theta? Yes. It was sine theta, right? So now what is cos square 90 minus theta? Will it not be sine square theta? Are you understanding? Sin 90 minus theta का फॉर्मूला पता था cos theta. Cos 90 minus theta का फॉर्मूला पता था sin theta. अगर हमने स्क्वायर यहाँ पे ऐड किया है एंगल के पहले, तो यहाँ पे बस एंगल के पहले we'll just add the square. Are you understanding? Yes. Okay. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cos square 90 minus 17 will become sin square 70. Abhi, this is very simple. Tell me, what was the first trigonometric identity? Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. What was the condition? कि यहाँ पे कुछ भी एनी एंगल, ये और ये एंगल अगर सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे डू यू नोटिस कि ये भी 63, ये भी 63, एंड दिस इज इनटू द फॉर्मूला।
sin square theta plus cos square theta, where theta is 63. So answer 1. Same thing is happening in the denominator also. That is also 1. What is 1 upon 1? 1. That's the answer. Clear, Manya? Yes. Yes. Question number 2 जो है exactly similar तरीके से you can solve. और I can also tell you one thing कि question number 2 का भी formula की वाला ही आने वाला है. First trigonometric identity. आप ये try करना मान्य, और ये you can write it right now कि आपको कौन से 2 questions करने ही करने हैं. Exercise 8.4 का question number 2 and question number 3 का. Okay, ये दोनों question आप करके आना. आई विल जस्ट आस्क यू कि आपको समझ आया है कि नहीं. अगर समझ आ जाएगा तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है. और अगर नहीं आता है then I will be there to explain you. Okay, so you don't have to worry about it. But आप एक बार try करना. All right. So in the next class, Manya, we will go ahead with exercise 8.4, and then after this, the next topic that we are going to do, because हमने अभी तक वो topic नहीं किया है, and that is going to be polynomial. The polynomial topic आ रहा है board exam में, right? Yes. Yes, I think polynomial जो topic है वो second chapter है, तो we'll do that topic. ठीक है? Okay.